Hello, dear students. In today's session, we are going to solve some of the most important question for the structure of atom that is going to come in the NEET 2026 examination. Let's go ahead and try to solve it. The first question that we can see is the match the following. So how to solve this question? It's pretty simple. We have to read the question, we have to go through the options, and then we have to tell which is the correct answer, right? Let's go with me. So सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट वन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है इन द लिस्ट वन. वहीं पे लिस्ट टू में ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल दे रखा है. नाउ एक एक करके बात करते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. What does a magnetic quantum number tell us? Magnetic quantum number tell us the orientation of the orbital in the 3D space. वो 3D space में orientation of orbital बताता है. तो अगर हम ध्यान से देखें A के लिए, तो A के हिसाब से the correct option will be orientation of the orbital. हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, spin quantum number. Spin quantum number tell us the orientation of the electron, the plus half and the minus half. So for that, it will be 2. For the C option, if you notice, it's the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number gives us the information about the shape of the orbital. And finally, the principal quantum number tell us about the size of the orbital. So it is A1, B2, C3, and D4. Now, when we check our option, it is actually the option number A that is represented over here, and that is the correct answer, right? Let's move ahead to the next question. Now, next question हमें बोलता है to calculate the frequency of the light emitted for the transition n is equal to 4 to n is equal to 2 in a helium positive atom, and it should be equal to the frequency of the light that is emitted in the hydrogen atom for which of the following transitions, right? The formula, so basically the concept is that we have to use the Redbox formula that is given in the Bohr's model of an atom. So over here, we can use the formula. Frequency is equal to Redbox constant, Z square, 1 upon NL square, that is the lower level, and NH square, that is the highest level. We use this formula. So first of all, हम पहले calculate करेंगे for the helium atom, helium positive. So helium positive के लिए, if we are going to calculate, that is going to RH. Now Z is the atomic number. So that is 2 square. 1 upon, what is the lower level? 2 square. What is the highest level? That is 4 square. If you solve this thing, you will get frequency of helium that is equal to RH into 4, and over here 4 square will be 16, 2 square will be 4. So take the LCM, 16, and of course 16 and 4, 4 minus 1, so that will be 3 by 16. Solve it a little bit, you will get your answer, frequency of this 3 by 4. So that is the frequency of helium we got. Now we have to match it with the hydrogen. Now for the hydrogen part, Z square is not going to help us because Z square it is 1 square, right? So how will we make sure that the rest of the part, 1 upon NL square minus 1 upon NH square gives us 3 by 4? If you notice one thing, that if I do 4 square, it will be 16. 3 square, it will be 9. So 16, 9, if you take the LCM, it will be a big number, right? The only thing, 3 and 1, it will be 1 upon 9, 1 upon 1 minus 1 upon 9. You take the LCM, it is 9. So I'm not getting 4. मुझे 4 नहीं मिल पा रहा. Let's go with this one and C is the correct answer. How? Let's check. So if I calculate for the frequency of the helium, then RH will be there. Z square, as I already told you, it is 1 square, 1 upon 1 square, and over there 1 upon 2 square. So yeah, solve it. You will get 1 by 4,
but of course 4 is there, so 4 minus 1, so that gives you RH 3 by 4. So वो कौन सा ऑप्शन है that matches with the this transition, that is n is equal to 4 gives you n is equal to 2. In case of helium, that is this one for our H positive hydrogen atom, for the hydrogen atom, not the H positive one. All right, let's move to the next question of this. The next question says the correct set of 4 quantum numbers are given for a valence electron of a rubidium atom. So for a rubidium atom, atomic number is given to us, that is Z is equal to 34. Few of the options are given, that is principal quantum number दे रखा है, azimuthal quantum number दे रखा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है और स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है. तो यार एक चीज की बात अगर हम ध्यान से सोचें तो रुबीडियम जो है Z, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं, so that is 37, so 36. So if you know what is 36, so that is your krypton. Helium is 2, neon is 10, argon is 18, and after that krypton will come. So 36, and if you filled 36, so that means now your electron must go into 5s1. The electron that we are talking about is 5s1. तो यार यहीं से हमें एक चीज पता चल गई कि n की वैल्यू 5 होनी चाहिए, जो कि सभी ऑप्शन में है. लेट्स मूव हेड. नाउ अगर क्वेश्चन बोलता है कि L की वैल्यू का पता लगाओ, सो S के लिए L की वैल्यू तो 0 होगी, तो या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, राइट? ठीक है, तो हम कट कर सकते हैं यहां पे 2 और 3 को, बिकॉज S सब शेल के लिए L की वैल्यू होती है 0. ML के बारे में बात करते हैं. अगर मेरी L की वैल्यू 0 है तो ML भी तो -n से +n तक ही जाता है, तो -0 से +0 जाने का मतलब 0 ही हुआ, तो मैं फोर्थ ऑप्शन को भी कट आउट कर सकता हूं. तो इसका सही और सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गिवन ओवर हियर, राइट? ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा हमारा हियर. अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 × 10⁻16 हर्ट्ज. 2 × 10⁻16 हर्ट्ज. इससे आप इरेडिएट कर रहे हो एक मेटल सरफेस पे, बेसिकली आप इसको स्ट्राइक आउट कर रहे हो, और वर्क फंक्शन दे रखा है. वर्क फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है वर्क फंक्शन का कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दे फ्रॉम द मेटल सरफेस से, वो कहलाती है हमारी वर्क फंक्शन, राइट? क्वेश्चन ने पूछा है कि उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो भी एमिट आउट होंगे. सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू h न्यू माइनस द वर्क फंक्शन. और वर्क फंक्शन को हम सभी को पता है, हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान देने वाली बात यही है कि यहां पे आपको h की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने इस बार नहीं दी. और एक बार आप ऑप्शन देख सकते हैं. ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए 10⁻⁻16, बी 7.5 × 10⁻18, 8.5 × 10⁻18, and 300 × 10⁻5. ओके, सो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻34 जूल्स सेकंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसको? फ्रीक्वेंसी को. सो दैट इज 2 × 10⁻16 हर्ट्ज की यूनिट होती है. इसको आप पर सेकंड भी लिख सकते हो. और जाहिर सी बात है, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक एनर्जी है, तो जूल्स होनी चाहिए. तो अगर आप h न्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसमें जूल और सेकंड है, तो यार जाहिर सी बात है हर्ट्ज भी पर सेकंड होगा, तभी तो सेकंड से पर सेकंड कटेगा, जूल बचेगा. ओके, माइनस कर दो वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन कितना दे रखा उन्होंने? 57.514 × 10⁻19. ठीक है, सो लॉजिकली देखा जाए तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि ये भी कहीं ना कहीं बीच में आ जाए इनकी पावर्स. सो 34 और 16, मैं 34 से 16 को माइनस करता हूं स्टेप बाय स्टेप. पहले 10 माइनस कर दिया, माइनस का 24 हो गया. 6 माइनस करूंगा इस 24 से, तो माइनस का 18 जाएगा, 10 की पावर -18 में जाएगा. ठीक है, 10 की पावर -18 में जाएगा. जूल बचेगा 6.626 और 2. आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, 2 2 4 5, 6 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 12 13, 13.252 × 10⁻18. क्यों ना हम इसको भी चेंज कर दें,
आप सभी को पता है, अगर मैं एक डेसिमल यहां से आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो 10 टू द पावर 1 पीछे जाएगा और वहां पे नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा 5.7514 इंटू 10 टू द पावर -18। कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन में भी आप देख पा रहे हैं 10 टू द पावर -5 का कोई रोल नहीं है, 16 हमें जरूरत ही नहीं है, राइट। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, 13.252 से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 5.7514, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली देखा जाए 13, देखिए 13 में से 5 को माइनस करेंगे, हम सभी को पता है 8 आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 थोड़ा सा ज्यादा है 13 से, बिकॉज 13 इज 13.25, दैट इज 5.75, तो कहीं ना कहीं 8 से कम कराएगा, और 8 से कम कराएगा तो 7.5 आएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक ये कि क्वेश्चन को जितना हो सके दिमाग लगा के सॉल्व करना है, राइट, मेंटोस वाली लाइफ से सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन करके वहां पे किसी को प्रूव नहीं करना, हमें बस अपने आंसर तक जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, राइट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स एज n इज इक्वल टू 4 एंड ms इज इक्वल टू 1/2। तो कभी कभार ना, अच्छा इसको देख के घबराना नहीं है, ms क्या आ गया, मैंने तो ml पढ़ा था, सिंपल सा लॉजिक है, जो आपने ml पढ़ा था वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था आपका, ms स्पिन क्वांटम नंबर का एक और रिप्रेजेंटेशन है उन बच्चों के लिए जिनको ये अभी तक पता नहीं था। वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगाओ जिनका क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 होगा। आइए बात करते हैं, अगर मेरा क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 है तो कौन कौन सी ऑर्बिटल मेरे पास एक्सेसिबल होंगी। सबसे पहले तो s होगी, 4s, 4p, 4d और 4f, क्योंकि ध्यान दिया जाए f ऑर्बिटल कहां से शुरू होती है, 4 से, तो ये सब शेल्स जो हैं 4s, 4p, 4d और 4f, ये चारों सब शेल मेरे पास एक्सेसिबल है। अब एक एक करके बात करते हैं। 4s में सिर्फ एक ऑर्बिटल आती है, 4p में 3 ऑर्बिटल आती हैं, 4d में 5 ऑर्बिटल्स आती हैं, और वहीं पे 4f पे 7 ऑर्बिटल्स आती हैं, राइट। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इतना पता लगाओ कि ms की वैल्यू हाफ कितनी हो रहेगी। तो यार इतना हम सभी को पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉक स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम प्लस हाफ और माइनस हाफ उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से बोलते हैं। तो यार हर ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ तो होगा ही, राइट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जिसके क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 हो सकते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारी ऑर्बिटल भरी हुई है, और अगर सभी भरी हुई है तो एक ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ तो होगा ही। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो बेसिकली कर लो 7 5 3 और 1, 7 3 10 5 1 16, सो 16 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है, सभी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ, माइनस हाफ वाले को इग्नोर करो, प्लस हाफ ले लो। जब आप ऐसा करोगे तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही बराबर हो जाएंगी नंबर ऑफ उन इलेक्ट्रॉन्स के जिनका n इक्वल टू 4 है और ms की वैल्यू हाफ है, ओके। आगे चलते इसके साथ। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ मैक्सिमम किसके लिए होगी। अब अगर सभी मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा, वो कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन का, वेव की डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का। सो बेसिकली डी ब्रॉगली आया क्यों था, डी ब्रॉगली इसलिए आया था ताकि पार्टिकल का भी वेव नेचर बता सके, राइट। वो ये कहता है कि यार सिंपल सा लॉजिक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एम वी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इसका मतलब अगर मैं सबका चेक करूं एक एक करके,
कि किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लैम्डा एक तरीके से नजर आता है कि डिपेंड कर रहा है मास पे। लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। आइए बात करते हैं। प्रोटॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और ड्यूट्रॉन है। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। सबसे पहले बात करें प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है हमारा करीबन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, राइट। वहीं पे अगर मैं न्यूट्रॉन का मास की बात करूं तो न्यूट्रॉन का मास आ जाता है मेरे पास अराउंड, थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगा, 1.6749, राइट, इंटू 10⁻⁻27। तो अगर मुझे डी ब्रोगली की वेवलेंथ को मैक्सिमम करना है तो मास को सबसे कम होना चाहिए। आगे चलते हैं, ड्यूट्रॉन का मास देखते हैं। एक्चुअली यहां पे ड्यूट्रॉन की जगह इनको ड्यूटेरियम लिखना चाहिए, बट ठीक है। ड्यूटेरियम का मास आपको पता है हाइड्रोजन से ट्वाइस होता है मास से, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो अगर सबसे स्मॉल मास इलेक्ट्रॉन का हुआ तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, ओके। आगे चलते हैं इससे। ड्यूट्रॉन का मास आप ड्यूटेरियम का मास बेसिकली 2 आप लिख सकते हैं, 2 यूनिट, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ले लेना, 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg आ जाएगा यहां से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर आयरन वायलेटिंग द हंट्स रूल। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वायलेट करती है हंट्स रूल से? हमें दे रखा है 26 आयरन। सो बेसिकली 26 जो आयरन दे रखा है यहाँ पे, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चली जाती है इसकी आर्गन 18 तक, उसके बाद 3d6 4s2, राइट। अब बात करते हैं थोड़ी कॉन्सेप्ट की, जो कि होता है हंट्स रूल। हंट्स रूल ये कहता है कि आप whenever you are trying to fill, बेसिकली मैं फर्स्ट डेफिनेशन बता दूं आप सभी को, whenever we are going to fill the electrons in a orbital, especially sp pdf orbitals, that is electron should fill each orbital first before taking part in the pairing, okay। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी पीडीएफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आए तो सभी ऑर्बिटल्स को एक एक करके इलेक्ट्रॉन दो, और पेयरिंग तभी शुरू करना जब सभी ऑर्बिटल पे एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए। दैट्स इट। सो नाउ व्हाट वी कैन सी, लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट वाले ऑप्शन में सभी बेसिकली 3d6 एंड 4s2। सो हम देख पा रहे हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, और कहीं ना कहीं पेयरिंग जो हो रही है वो कहीं पहले वाले पे हो रही है, दैट्स फाइन, बट सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, राइट। दैट्स हंट्स रूल। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 पे देखें तो अगर आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं सभी ऑर्बिटल्स जो 3d के उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एंड जो लास्ट 6th इलेक्ट्रॉन बचता है आपका वो वापस से पहले वाले में आया, बट उसकी ओरिएंटेशन अबव है। तो इलेक्ट्रॉन तो आ गया, और हंट्स रूल का यहीं तक है, इसको गलत मत समझना। यहां पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण ये गलत होगा, बट क्वेश्चन ने पूछा है वॉयलेट करना है हंट्स रूल को, तो हम रहेंगे हंट्स रूल तक, ओके। आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। देखिए कहीं ना कहीं आपने यहां पे 4s को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, 4s आपकी हायर ऑर्बिटल है। हंट्स रूल ये कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने एक ही ऑर्बिटल में तो सबको भरिए और पेयरिंग करवाइए। 4s को इलेक्ट्रॉन नहीं गया, यहां पे वॉयलेट हुआ है, बट हंट्स रूल वॉयलेट नहीं हुआ, यहां पे वो है ऑफ वॉ, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। सो उस हिसाब से 4s पे इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, देन 3d पे आने चाहिए थे, राइट। सो लास्ट वाले को देखते हैं ध्यान से। कहीं ना कहीं जब मैं डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, डी ऑर्बिटल को फिल करने की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एक चीज जो दिख रही है वो ये है कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्लटर्ड हो रखे हैं पहले दूसरे तीसरे ऑर्बिटल में। तो डी ऑप्शन ही आपका क्या है, इनकरेक्ट, दैट इज वायलेटिंग हंट्स रूल। बिकॉज सबसे पहले तो सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन भेजे जाने चाहिए थे, जैसे कि ऑप्शन 1 में, और जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच गया उसकी आप पेयरिंग शुरू करें, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन भेजे नहीं और आपने पहले ही पेयरिंग शुरू कर दी। सो दैट्स व्हाई दिस इज वायलेटिंग द हंट्स रूल।
सो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। हो सकता है कोई गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जाए, बट उसको एनालाइज करो। हो सकता है वो हंड्स की जगह कोई दूसरे रूल को वायलेट कर रहा हो। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर दिस केस इज द फोर्थ वन। ओके ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम उठाएंगे यहां से उसके बारे में बात करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this one. Questions are from all the parts of your structure of atom, so mixed questions हैं। Let's see this type of question. Question कहता है which of the following EM wave electromagnetic radiation has the minimum wavelength। और कुछ उन्होंने वैल्यूज दे, मतलब कुछ उन्होंने दे रखी है, एक एक करके बात करते हैं। इंफ्रारेड रेज दे रखी है, और हम सभी को पता है इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन आवर रिमोट टीवी रिमोट्स। यूवी रेज दैट कम्स फ्रॉम द सन, गामा रेज आर यूज्ड ओवर हियर, एंड द रेडियो वेव्स। एक एक करके बात करते हैं। सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की बात करें, सो दैट इज जी एक्स यूवी आई एम आर। आप भी इसको याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, जी एक्स यूवी आई एम आर। एक बार मेरे साथ बोलिए, जी एक्स यूवी आई एम आर। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है उसके बारे में बात कीजिए। देखिए, टॉप से बॉटम जब आते हैं, व्हेन यू कम फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या है कि आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है। राइट, आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है। वहीं पे अगर कोई बोले मैं टॉप से बॉटम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूंगा, सो टॉप से बॉटम जब आप आओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। क्वेश्चन ने पूछा है मिनिमम वेवलेंथ, किस ऑप्शन की वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो जाहिर सी बात है उसी ऑप्शन की वेवलेंथ मिनिमम होगी जो सबसे टॉप पे रहा होगा। टॉप पे देखा जाए तो गामा है, और यहां पे भी गामा ऑप्शन दे रखा है, तो गामा रेस आर द वन विच आर हैविंग द मिनिमम वेवलेंथ। दैट्स व्हाई उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। राइट, एंड हल्क मूवी तो देखी होगी, हल्क को एनर्जी कैसे मिली थी, गामा रेस से। राइट, सो आप वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। आगे चलते हैं थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हियर, ध्यान से देखिएगा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स बता दो। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आपको, कॉन्सेप्ट जो यहां पे लगाना है वो है n प्लस एल रूल। हम लगाएंगे n प्लस एल रूल टू गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईच ऑर्बिटल्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मोस्टली ऑर्बिटल्स मेरे पास हैं 3s, 3p, 3d एंड 4s। यही चार ऑर्बिटल्स हैं सभी ऑप्शन में, बस आगे पीछे दे रखी है। आइए बात करते हैं। अगर मैं 3s, 3p, 3d की बात करूं तो n की वैल्यू इन सब में 3 रहेगी। लेकिन अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करूं, सो s के लिए वो वैल्यू होती है 0, p के लिए वैल्यू होती है 1, और d के लिए होती है वैल्यू 2। अगर आप n प्लस एल रूल से सॉल्व करेंगे, सो यहां था 3, यहां आ गया 4, और यहां आ गया आपका 5। वहीं पे अगर आप 4s के लिए जाएंगे, n की वैल्यू 4s के लिए होती है 4, और s की वैल्यू 0। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि 3s से ही शुरू होगा, तो ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, सी नहीं होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है, सो सी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और डी हो सकता है। आइए आगे चलें। 3p 4 वैल्यू दे रहा है, और 3p भी 4 वैल्यू दे रहा है, और 4s भी 4 वैल्यू दे रहा है। ध्यान से सुनना, दोनों ही 4 वैल्यू दे रहे हैं। तो n प्लस एल रूल का जो सेकंड पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये कहता है कि अगर कभी भी n प्लस एल की वैल्यू is going to be equal, so what we can do is that the orbital which is having lower value of principal quantum number, that is n, that should fill first. So 3s के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए वो 3p में जाना चाहिए। तो वो ऑप्शन ए में देखने को मिलता है, और ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। हम डी को भी कट कर सकते हैं। राइट, आइए आगे चलते हैं। अब तो इसके बाद जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 3s के बाद 3p भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 4 है n प्लस एल की, तो यार अगला तो 4 भरेंगे ना, जो कि 4s है, बिकॉज 3d की वैल्यू 5 है। सो 3d को आप पीछे रखिए, 4s को आगे रखिए, बी ऑप्शन को करेक्ट कीजिए। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन है
जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेम ऑर्बिटल को, राइट। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं 3s का ले रहा हूं, डजंट मैटर। 3s में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे दिखाया। सो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल को जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनको आप किस चीज से डिस्टिंग्विश करोगे, बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो n की वैल्यू उसके लिए 3 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 3 है। l की बात करूं तो क्योंकि मैंने 3s का एग्जांपल लिया है तो l की वैल्यू 0 हुई, दूसरे के लिए भी 0 हुई। m की वैल्यू की बात करूं तो हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस और माइनस तक जाता है, प्लस l से माइनस l तक, माइनस l से प्लस l तक। सो यार यहां पे भी m की वैल्यू 0 और यहां पे भी, मतलब इन तीन वैल्यू से वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश whether the two electrons occupying the same orbital or not. So what remains? The last thing that remains is the spin quantum number. Spin quantum number बोलता है कि जो अप स्पिन है, राइट, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको प्लस हाफ से कर दो, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस हाफ कर दो, राइट। सो यहां से हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। स्पिन क्वांटम नंबर is the one which can easily distinguish among the two electrons. Moving ahead to the next question. Okay, अगला क्वेश्चन आता है हमारे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following series of He positive? So what is He positive? It is hydrogen like species, right? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, हीलियम पॉजिटिव। इसका स्पेक्ट्रम विच विजिबल रीजन पे लाई करेगा? देखिए विजिबल रीजन को लाई करने के लिए हमें पता है विजिबल रीजन कहां कहां लाई करता है। लाइमन सीरीज जो है आपकी, अगर आपने स्पेक्ट्रम को ध्यान से पढ़ा होगा, ये लाई करती है आपकी यूवी में, दिस लाइज इन द यूवी। ओनली द बाल्मर सीरीज दिस इज द वन, एंड नॉट ऑल द बाल्मर सीरीज, सर्टेन ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज दैट एक्चुअली लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, राइट। n is equal to 5 से n is equal to 2 पे जब आओगे, n is equal to 4 से 2 पे आओगे, 3 से 2 पे आओगे, लाइक दिस थिंग, ओके। सो बाल्मर सीरीज ही आपकी विजिबल रीजन पे होती है। उसके बाद जितनी भी आपकी ट्रांजिशंस होती हैं वो स्लोली बाय स्लोली नियर IR, फार IR और आगे चलती रहती है। सो प्राश्चन, अब ब्रैकेट का तो फिर हम सवाल ही नहीं उठता, राइट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बाल्मर सीरीज, क्योंकि बाल्मर सीरीज ही हमारी विजिबल रेंज में लाई करती है। और नॉट ऑलवेज सारी ट्रांजिशन ही, कुछ ट्रांजिशन जैसे मैंने बताया 5 से 2 पे आना, 4 से 2 पे आना, 3 से 2 पे आना, लाइक दिस, ओके। मूव करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट बेस होते हैं, जिन पे हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट फैक्ट पता होना चाहिए, दैट इज द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। हमें फैक्ट पता होने चाहिए। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है विच गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। पहली आपकी असर्शन है, दूसरी रीजन है। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। आइए पढ़ते हैं। असर्शन कहता है कि क्रोमियम हैज मैक्सिमम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू इन द 3D स्पेस, राइट। उसकी जो मैक्सिमम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्रोमियम की जो वैल्यू है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द 3D सीरीज। अब ध्यान देने वाली बात यह है इन दोनों में कि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है, ध्यान से देखा जाए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। सबसे पहले तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। सो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। ऑफ कोर्स आर्गन होता है, बट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से काम है, सो इसी का यूज करेंगे 3d5 4s1। 3d5 4s1 का यूज करते हुए आगे चलते हैं। सो यहां पे हमें देखा जाता है, दिखता है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो देखो अगर मैं रीजन की बात करूं तो रीजन को होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D सीरीज। ऐसा नहीं है मैग्नीज के पास Mn, अगर मैं यहां पे लिखूं Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, उसका चले जाता है 3d5 एंड 4s2। सो वहां पे भी आपको 3d5 देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही केस हुए आपके जहां पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल नहीं सकते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Mn के पास भी सेम है। ओके, आगे चलते हैं। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। क्या इसका मैक्सिमम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है 3D सीरीज में? वेल,
क्योंकि देखो अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन 6। सो हाँ, हम बोल सकते हैं कि क्रोमियम का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा रहेगा इन द होल पीरियोडिक टेबल, राइट, एज कंपेयर टू द मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज के पास 5 है, यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो ज्यादा आएगा। तो आप इसे कर सकते हो कि असर्शन ए इज राइट बट द आर इज फॉल्स। ओके, मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट वन में कुछ वैल्यूज दे रखी है, दैट इज n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 2, एंड लिस्ट टू दे रखी है हमें 4f करके। देन बी में चलते हैं, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 0, एंड लिस्ट टू में हमें दे रखा है 6d 3p 5s। क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस दैट इज गिवन बिलो। एक एक करके बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वो लगाएंगे n प्लस एल रूल का। तो देखिए, सबसे पहले करता हूं n प्लस एल रूल पहले वाले पे। अच्छा, आपको यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, आपको बेसिकली मैच करना है, तो यहाँ पे तो आपको n की वैल्यू और l की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, n प्लस एल लगाने की जरूरत नहीं, उससे एक और शॉर्टकट है, आप सीधा ऑर्बिटल्स उठाइए और ऑर्बिटल्स की वैल्यू लिखिए। मैं सबसे पहले 4f उठाता हूं, इसको अगर मैं वैल्यू लिखूं इसकी n और l की, तो देखिए ध्यान से, n की वैल्यू आती है 4, l की वैल्यू आती है 3। तो अगर n की वैल्यू 4 आती है, l की वैल्यू 3 आती है, बिकॉज f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो ये कहीं ना कहीं मैच करता है बी ऑप्शन से, राइट। 6d के बारे में बात करेंगे, 6 पहले लिखा हुआ है तो वो होगी n की वैल्यू, और d के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो होता है 2, वो होता है 2। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। 3p दे रखा है, क्या दे रखा है? 3p। 3p में जो 3 है वो मेरा n की वैल्यू है, और p के लिए मैं लगा सकता हूं 1। सो 3p मुझे सामने ही दिख रहा है। 5s, n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 0 है। सो ये मैच हो गई, और एक 6d बचा होगा, तो ये रहा। तो मेरा ऑप्शन क्या बन के आया? a का 2, ऑप्शन देख लेते हैं नीचे, a का 2, b का 1, c का 3 एंड d का 4। a का 2, b का 1, c का 3, d का 4। सो ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, a का 2, b का 1, c का 3, d का 4। ओके, दैट इज द वे ऑफ डूइंग इट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कहीं ना कहीं दिस क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कभी कभार वो इनकरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो उसको बच्चे करेक्ट पढ़ के समझ लेते हैं, राइट। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ p ऑर्बिटल इज नॉन जीरो, राइट। अगर आप एंगुलर मोमेंटम एक ऑर्बिटल का देखेंगे, क्या वो p ऑर्बिटल के लिए नॉन जीरो वैल्यू होगी, इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन बी पढ़िए, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स while an electron in an atom is designated by 3 quantum numbers। ठीक है, आगे चलिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एटम दे रखी है। तो सबसे पहले तो यार कॉपर एटम का आप यहाँ पे तुरंत लिख लीजिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक आपने आर्गन भर दिया। और ध्यान रखना, क्रोमियम और कॉपर की कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? एक्सेप्शनल, राइट। सो 3d9 4s2 नहीं होगा, 3d10 4s1 होगा, तो इस हिसाब से बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ mdxy, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मेरे पास 5 ऑर्बिटल दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 वाली को हटा दीजिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बीच वाली ऑर्बिटल होती है जिसको हम जीरो बोलते हैं, +1 +2 -1 -2, ये तो बिल्कुल डिफाइन हो रही है कि ये dxy ही रहेगी। अब बचे ऑप्शन नंबर ए और 2। सो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हम। इसका एक फॉर्मूला होता है, राइट। इसका फॉर्मूला होता है √L+1। तो कहीं ना कहीं अगर आप टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो आप p की वैल्यू पुट करें
एल की वैल्यू हो जाती है 1, राइट? सो 1 और 2 बच जाएगा अंदर, राइट? सो देख पा रहे हैं आप कि नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, आराम से, बिल्कुल आराम से आ रही है, राइट? ओके, कैपिटल एल लिख लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ, राइट? कैपिटल एल यूज करना। सो फाइनली अगर इस ऑप्शन पे देखा जाए, क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट करा है यहाँ पे। ऑर्बिटल को पता लगाने के लिए, एक ऑर्बिटल डिफाइन होती है 3 क्वांटम नंबर के साथ, बट एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। सो बी ऑप्शन इज द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट इस क्वेश्चन में। ओके, आगे चलते इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन यहां पे आता है वो आता है हमारा रिलेटेड टू हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। एक वो वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं। सो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं थोड़ा। उससे पहले एक रेडियस का कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ द थर्ड ऑर्बिटल ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव टू द सेकंड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव, राइट? सो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है लिथियम 2 पॉजिटिव से अपॉन रेडियस का रेशियो निकालना है बेरिलियम 3 पॉजिटिव से। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो रेडियस का फॉर्मूला चाहिए होगा। रेडियस का फॉर्मूला हम सभी को पता है दैट रेडियस फॉर बोर एटम इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जी, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है? ये फॉर्मूला है एंगस्ट्रॉम में, तो इस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है और ये कट ऑफ हो जाएगा ऊपर और नीचे, बचेगा एन स्क्वायर जी, एन स्क्वायर 1 जी1 अपॉन एन टू स्क्वायर जी2। आइए वैल्यू देखें। लिथियम 2 पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो लिथियम के लिए कौन सी ऑर्बिटल बोली उसने, थर्ड ऑर्बिट, सो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है खुद 3। चलिए आगे आगे चलते हैं, बात करेंगे हम बेरिलियम की, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। सो बेरिलियम 3 पॉजिटिव में एन की वैल्यू में ध्यान से देखूं तो उसने बोली सेकंड ऑर्बिट, सो उसको कर दीजिए 2 का स्क्वायर, और बेरिलियम की खुद जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, तो ये हो जाएगा 9/3 इंटू 4/4। सो 4 से 4 कट ऑफ करा, 3 से 9 को कट ऑफ करा, 3 आंसर आया। सो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सही आया वो आया ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो हमने एक रेडियस का भी क्वेश्चन कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं, कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ फोटोन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ अ फोटोन ऑफ अ पोटेशियम, राइट? व्हाट इज द मास ऑफ अ फोटोन ऑफ अ पोटेशियम light with a wavelength of 766 नैनोमीटर, गिवन दैट प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है, ठीक है? सो कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है। आप देखिए यहाँ पे फोटोन का मास निकालना है। सो द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, राइट? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। हमारे पास एक इक्वेशन ये है। दूसरी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक होती है हमारे पास एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। सो मुझे मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी लैम्डा की। सो लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं 766 नैनोमीटर, राइट? एच की वैल्यू मैंने लगा दी कितनी, हाउ मच, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स। मास निकालना है, वेलोसिटी। अब जो पार्टिकल है फोटोन का वो तो स्पीड ऑफ लाइट से लाइक भागेगा सीधा, सो लगा सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट? सॉल्व करने थोड़ा, मास को वहां ले जाता हूं 6.626, इजी कैलकुलेशन के लिए 6.626 6.63 ले लेते हैं, 10 टू द पावर -34 जूल कर दिया। डिवाइड करते हैं इसको किससे, लैम्डा से, 766 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और
जो हमारी वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सो जूल, सो बेसिकली आप क्या करें, मैं ये कहूंगा आपको सजेस्ट कि आपको पता होना चाहिए जूल केजी मीटर सेकंड में क्या है, वैल्यू देता है। तो जूल आप ले सकते हैं, जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम जूल को रिप्लेस करके लिख सकते हैं, इसको मैं अगली स्लाइड में लेके जाता हूँ। 6.63 इंटू 10⁻34, यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 766 नैनोमीटर था मीटर, और स्पीड ऑफ लाइट थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। सो मीटर से कहीं ना कहीं मीटर कट गया, ऊपर वाला मीटर, पर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर से 1 सेकेंड कट गया, 1 सेकेंड रहेगा क्योंकि जूल सेकेंड था, इतनी वैल्यू होती है जूल की, तो उस सेकेंड से अंदर का सेकेंड भी कट गया, राइट। सिर्फ केजी बचा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 10⁻34 766 इंटू 3 इंटू 10⁻1। ध्यान से देखना, अब देखिए ऊपर क्या मैं लिख सकता हूं, 663 राइट इंटू 10⁻36, नीचे 10⁻1 है, और ये 766 इंटू 3 है, राइट। केजी बचा है, केजी मुझे चाहिए भी। हाँ, 10⁻35 आ चुका है। 663 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18, 6 3 9, 18 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 3 21 2। सो 663 को 2298 से करिए। थोड़ा सा इसको और हम लाइक कर सकते हैं आगे, एक और जीरो दे दीजिए, 6630। अब यहाँ पे चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी और ये हो जाएगा 10⁻36, राइट। अब सिंपल है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 2290 को डिवाइड करना चाहूँ 6630 से, तो मुझे ये पता है कि 10⁻36 पीछे आ रहा है, इसका यूज करते हैं। 10⁻35 वाला ऑप्शन हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2290। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 9 3 21, 3 2 6 8, 3 2 6 8, 3 3 6 6810। ये कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है तो मुझे 3 तक जाना ही नहीं है, मुझे 2 तक जाना है, और मैं 2 तक जाऊंगा तो 2 तक एक ही वैल्यू दिख रही है जिसमें 10⁻36 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, आगे चलते इसके साथ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है फ्रीक्वेंसी का पता लगाओ ऑफ लाइट इन हर्ट्ज कॉरेस्पॉन्ड टू अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तो देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, राइट। यही हमारा फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर्ट्ज में, तो मुझे वेवलेंथ दे रही है और स्पीड ऑफ लाइट दे रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट लीजिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए वेवलेंथ से 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से। सो मीटर से मीटर कट ऑफ हुआ, पर सेकेंड बचेगा, पर सेकेंड ही हर्ट्ज होता है, और थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ है ऊपर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 आएगा, जिसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ऑफकोर्स वो बन जाएगा 3 इंटू 10⁸, और नीचे आपका 7 है, 15 आ जाएगा, राइट, प्लस का 15। लेकिन ध्यान दिया जाए, मेरे पास नीचे क्या बचता है, 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, और आई थिंक इसके बाद मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप पॉइंट हटाएंगे, 15 का 14 होगा, और सी ऑप्शन आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन सुनना ध्यान से।
क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ लास्ट लाइन ऑफ, ध्यान से पढ़ना, वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर एच एटम। एक एक करके बात करते हैं। उसने बोला लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो लास्ट लाइन तो इंफिनिटी तक जाएगी, राइट? इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए वेव नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं हीलियम की तो आप लिखना चाहें जेड तो लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 1 अपॉन, आप स्टार्ट करोगे मिनिमम लेवल तो 2 ही रहेगा और मैक्सिमम लेवल रहेगा आपका इन्फिनिटी, हाईएस्ट लेवल। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी तो आ जाएगी वो आर एच 4 इंटू 1/4, वो तो 0 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आई आर एच, तो हमें पता चल गया लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज की जो वेव नंबर है वो है आर एच। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के बारे में बात करेंगे। जो लाइमन सीरीज रही हमारी, लाइमन सीरीज हमारी n इज इक्वल टू 1 से शुरू होती है, सो आर एच 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट लाइन जो जाती है वो यहां तक जाती है। ओके, ध्यान रखना लाइमन सीरीज है हीलियम की तो 2 का स्क्वायर, सो न्यू बार आर एच। इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सभी को पता है 3/4 आ जाएगा। 4 से 4 को कट ऑफ कर दीजिए, राइट? सो क्या डिफरेंस आया? 3 आर एच न्यू बार। सो ये किसका नहीं आया? जो आपकी आई वेव नंबर, ये वेव नंबर आई आपकी लाइमन सीरीज की। ऊपर आपने जो अभी जस्ट कैलकुलेट करा वो कैलकुलेट करा था आपने बाल्मर सीरीज का। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 3 आर एच से आर एच माइनस कर दीजिए, बेसिकली 2 आर आ जाएगा, राइट? So 2R is the correct answer for this type of questions. Okay. All right, student. Keeping said that, we are going to start with a new chapter in the next session. That is going to be the chemical bonding. Till then, keep practicing and all the very best for your NEET examinations. Bye bye.